السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں سواگت ہے آپ کا۔ ہم بات کرنے والے ہیں ایک بہت ہی دلچسپ پاکستانی ڈرامہ کے بارے میں جس کا نام ہے کفارہ۔ یہ ڈرامہ بھی بہت ہی دلچسپ ہے، بہت خوبصورت ہے۔ اس میں کریکٹرز اور مین رولز بہت ہی اچھے طریقے سے ایکٹنگ کر رہے ہیں۔ اس کا پروڈکشن لیول بہت ہی ٹاپ نوچ ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ کفارہ کی کہانی انتہائی کمپلنگ ہے۔ ڈرامہ کی سینٹرل تھیم ہی گلٹ اور ریڈمپشنز۔ کیا انسان اپنی گناہوں کا کفارہ ادا کر سکتا ہے؟ سٹوری میں آپ کو بہت سارے ٹویسٹ اور ٹرنز ملیں گے جو آپ کو لاسٹ تک انگیج رکھیں گے۔ کریکٹرز کے تھرو ڈرامہ ایسے اہم سوال۔ اب اگر ہم کریکٹرز کی بات کریں تو لیڈ رولز میں مین کریکٹر ہے ہمارے سپر ہیرو، جس نے کمال کر دی ہے۔ ہر سین میں ان کی پرفارمنس آؤٹ اسٹینڈنگ ہے۔ سپورٹنگ کاسٹ بھی اپنی جگہ اسٹرانگ پرفارمنس دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ڈرامہ کی ڈائریکشن کی اگر بات کی جائے تو ڈائریکٹرز نے بہت ہی اچھی طرح سے سٹوری کو ہینڈل کیا ہے۔ ہر سین کے ویژولز اپیل بہت امپریسو ہیں۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں سواگت ہے آپ کا۔ ہم بات کرنے والے ہیں ایک بہت ہی دلچسپ پاکستانی ڈرامہ کے بارے میں جس کا نام ہے کفارہ۔ یہ ڈرامہ بھی بہت ہی دلچسپ ہے، بہت خوبصورت ہے۔ اس میں کریکٹرز اور مین رولز بہت ہی اچھے طریقے سے ایکٹنگ کر رہے ہیں۔ اس کا پروڈکشن لیول بہت ہی ٹاپ نوچ ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ کفارہ کی کہانی انتہائی کمپلنگ ہے۔ ڈرامہ کی سینٹرل تھیم ہی گلٹ اور ریڈمپشنز۔ کیا انسان اپنی گناہوں کا کفارہ ادا کر سکتا ہے؟ سٹوری میں آپ کو بہت سارے ٹویسٹ اور ٹرنز ملیں گے جو آپ کو لاسٹ تک انگیج رکھیں گے۔ کریکٹرز کے تھرو ڈرامہ ایسے اہم سوال۔ اب اگر ہم کریکٹرز کی بات کریں تو لیڈ رولز میں مین کریکٹر ہے ہمارے سپر ہیرو، جس نے کمال کر دی ہے۔ ہر سین میں ان کی پرفارمنس آؤٹ اسٹینڈنگ ہے۔ سپورٹنگ کاسٹ بھی اپنی جگہ اسٹرانگ پرفارمنس دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ڈرامہ کی ڈائریکشن کی اگر بات کی جائے تو ڈائریکٹرز نے بہت ہی اچھی طرح سے سٹوری کو ہینڈل کیا ہے۔ ہر سین کے ویژولز اپیل بہت امپریسو ہیں۔ سواگت ہے آپ کا۔ ہم بات کرنے والے ہیں ایک بہت ہی دلچسپ پاکستانی ڈرامہ کے بارے میں جس کا نام ہے کفارہ۔ یہ ڈرامہ بھی بہت ہی دلچسپ ہے، بہت خوبصورت ہے۔ اس میں کریکٹرز اور مین رولز بہت ہی اچھے طریقے سے ایکٹنگ کر رہے ہیں۔ اس کا پروڈکشن لیول بہت ہی ٹاپ نوچ ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ کفارہ کی کہانی انتہائی کمپلنگ ہے۔ ڈرامہ کی سینٹرل تھیم ہی گلٹ اور ریڈمپشنز۔ کیا انسان اپنی گناہوں کا کفارہ ادا کر سکتا ہے؟ سٹوری میں آپ کو بہت سارے ٹویسٹ اور ٹرنز ملیں گے جو آپ کو لاسٹ تک انگیج رکھیں گے۔ کریکٹرز کے تھرو ڈرامہ ایسے اہم سوال۔ اب اگر ہم کریکٹرز کی بات کریں تو لیڈ رولز میں مین کریکٹر ہے ہمارے سپر ہیرو، جس نے کمال کر دی ہے۔ ہر سین میں ان کی پرفارمنس آؤٹ اسٹینڈنگ ہے۔ سپورٹنگ کاسٹ بھی اپنی جگہ اسٹرانگ پرفارمنس دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ڈرامہ کی ڈائریکشن کی اگر بات کی جائے تو ڈائریکٹرز نے بہت ہی اچھی طرح سے سٹوری کو ہینڈل کیا ہے۔ ہر سین کے ویژولز اپیل دینے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں تو آپ کے بھائی کا عدلے کا بدلہ ہی لوں گی، کیونکہ جیسا تمہارے بھائی نے کیا ہے ویسا ہی میں کر کے رہوں گی۔ شاہ نواز شاہ کو بھی غصہ آ جاتا ہے۔ شاہ نواز شاہ کہتا ہے کہ چلو میں ابھی دیکھتا ہوں کہ کہاں تک کس حد تک تم جا سکتی ہو، لیکن مہر النساء کہتی ہے کہ میں اس حد تک جاؤں گی جس حد تک تم نہیں جا سکتے۔ یہ سنتے ہی اب شاہ نواز شاہ کو مہر النساء کی باتیں بڑی یاد آتی ہیں، بلکہ اس کو محبت ہو جاتی ہے مہر النساء سے۔ دوسری طرف سے عمل کی بات کی جائے، عمل کافی زیادہ سنسیئر ہوتی ہے شاہ نواز شاہ کے ساتھ۔ وہ شاہ نواز شاہ کو کہتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے جلدی سے ہم شادی کر لیتے ہیں۔ شاہ نواز کہتا ہے کہ اتنی شادی کی جلدی کیوں پڑی ہوئی ہے، میں نے ابھی شادی نہیں کرنی، فی الحال میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے اتنا کام میں بیزی ہوں کہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ تمہارے ساتھ ہر ٹائم بات کرتا ہوں کال پہ۔ یہ سنتے ہی اب بہت ہی زیادہ عمل کو غصہ آ جاتا ہے۔ عمل کہتی ہے چلو میرے لیے ٹائم نہیں ہے تو کسی اور کے لیے تو ٹائم ہوگا، لیکن جیسے ہی عمل کی والدہ اس کو کافی زیادہ سمجھاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ بیٹا وہ بہت زیادہ بڑے لوگ ہیں، وہ سیاستدان ہیں، ہم ان کے ساتھ رشتہ نہیں جوڑیں گے، اگر رشتہ جڑ بھی گیا تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کامیاب ہو پائے گا۔ لیکن سمن شاہ جو ہے وہ بھی بہت ہی زیادہ شاطر عورت ہے، اس نے تو اپنی بھابھی کو پیچھے لگایا ہوا ہے کہ ہم رشتہ کریں گے، لیکن اندر سے تو بہت ہی زیادہ جیلس ہوتی ہے کہ ہم اس کی بیٹی آتے ہی گھر میں کس طرح سے اس کے ساتھ پیش آنے والے ہیں۔ دوسری طرف سے اگر بات کی جائے سمن شاہ کے ہسبینڈ کی، جو کہ شاہ نواز شاہ کا والد بہت ہی زیادہ بیمار ہے، اس ٹائم وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتا ہے، اس کی کافی زیادہ طبیعت خراب ہوتی ہے، لیکن جو بندہ بیمار ہوتا ہے اس کو ہی دوسری کی بیماری کا ہی احساس ہوتا ہے۔
इस वजह से वो कहता है कि जिस बच्चे का बहुत बुरे तरीके से एक्सीडेंट हो चुका है उस बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत है, तीमारदारी की ज़रूरत है और पैसों की ज़रूरत है, बल्कि वो गरीब लोग हैं किस तरह से खर्चा करते होंगे। दूसरी तरफ से जो जैन शाह है उसको तो घर में बहुत ही ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, वो बहुत ज़्यादा नशा कर रहा है, वो रूम में ही बंद बैठा हुआ है, उसको बहुत ज़्यादा परेशानी है, उसको बार बार मेहरुन्निसा की बातें याद आ रही हैं, बल्कि उस लड़के की आंख में भी मेहरुन्निसा ही बैठ गई है। दूसरी तरफ से वो तो अपनी बात किसी से शेयर भी नहीं करता। शाहनवाज शाह क्या करने वाला है आप लोग देखेंगे कि इतना तेज़ और शातिर आदमी तो कभी नहीं दुनिया में देखा होगा। शाहनवाज शाह ने बहुत ही जल्द अपने भाई का टिकट करवाकर उसको आउट ऑफ कंट्री भेज दिया है, क्योंकि जैसे ही अब पब्लिक का दबाव पड़ेगा पुलिस पे तो बंदा नहीं मिलेगा, बंदे को तो यहाँ पर कोई उसका नामो निशान नहीं होगा। शाहनवाज शाह जो कि जैसी इलेक्शन के लिए खड़ा होगा तो कोई गरीब इसको वोट देने के लिए भी तैयार नहीं होगा, क्योंकि इसने लोगों का बहुत बुरा किया था। अब जैसे ही दाऊद आकर बताएगा कि मैम जी कोई भी आप लोगों के हक में नहीं खड़ा, क्योंकि सब के सब बहुत ही ज़्यादा खिलाफ हैं, ये सुनते ही अब समन शाह को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। समन शाह अब बहुत ही बुरे तरीके से नीचे गिरने वाली है, जो कि कभी भी 2-4 साल तक तो ऊपर उठ नहीं सकेगी, वो भी सियासत के दौरान। अब देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में समन शाह क्या करेगी। समन शाह तो अपना बहुत ही ज़्यादा जोर लगाकर लोगों से वोट मांगने के लिए क्या क्या वास्ते करने वाली है, लोगों की मिन्नतों समाजित करने वाली है। आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को भी लाइक करें और शेयर करें, आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों तक मिल जाए। अब इमल ने तो साफ साफ जवाब दे दिया है, तो मैं तो आपकी वाइफ नहीं बन सकती, क्योंकि मुझे आपकी वालदा ने कोई ऐसी बातें मेरी मम्मी जान को कही हैं कि मेरी वालदा कह रही हैं मैं कभी भी आपसे शादी नहीं करूंगी, बल्कि अमल कहती है कि किसी न किसी तरह से शाहनवाज तुम आओ और मेरी मम्मी से सॉरी करो और रिश्ता ले जाओ। लेकिन शाहनवाज शाह दिल से बहुत ही ज़्यादा नफरत करता है अमल से। अब नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि शाहनवाज शाह जो है वो बहुत बुरे तरीके से अपनी सियासत से नीचे गिरेगा और नया सियासतदान आ जाएगा। जो कि दूसरी तरफ से राफी की बात की जाए, राफी काफ़ी ज़्यादा मेहरुन्निसा की वजह से परेशान है कि रात गए तक बाहर एक अकेली लड़की का रहना भी बहुत मुश्किल होता है। दूसरी तरफ से राफी की वालदा आती है, वो कहती है कि इतनी रात गए तक बच्ची अकेली बाहर है, लेकिन आप लोगों को ज़रा भी एहसास नहीं है कि इस दौर में आजकल के हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं। मेहरुन्निसा को टाइम से घर आने की परमिशन दिया कर, उसे कहा करो, ज़ोरों ज़बरदस्ती उसके साथ गुस्से से पेश आया करो अगर वो टाइम से घर ना आए। लेकिन उसकी वालदा तो बेचारी बहुत ही ज़्यादा चुपसी ठान लेती है। वो कहती है कि मेरी बेटी ऐसी वैसी नहीं है, वो कहती है ऐसी वैसी की तो बात नहीं है, बट ज़माना इतना ज़्यादा ख़राब है कि आप अपनी बेटी को टाइम से ही घर बुलाया करें, क्योंकि किसी बहुत बड़े सियासतदान का मुकाबला करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर बच्चे का एक्सीडेंट हो चुका है, अगर वो पैसा वैसा दे रहे हैं तो फिर चुपचाप पैसे ले लो और इतना बड़ा इशू क्रिएट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेहरुन्निसा जो है वो कहती है कि मैं मुकाबला करूँगी, लेकिन मुकाबला करते करते उसको कितने बुरे तरीके से कुचल दिया जाएगा। शाहनवाज शाह कहता है कि तुम तो एक तितली की मानद हो, मैं तो तुम्हें हाथ से ही मसल कर फेंक दूंगा। तुम्हारी फैमिली भी इतनी छोटी है कि दोबारा तुम्हारा नाम तक नहीं लेगी, ढूंढते ढूंढते सदियां गुजर जाएंगी। आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल मेरा सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करते जाएँ और साथ मेरी वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। और वीडियोस तो बिल्कुल छोटी सी है, आप लोगों को सारी स्टोरी समझ आ जाएगी, स्किप तो बिल्कुल भी ना करें। बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया आप लोगों का, कीमती राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे इक़्तिदार ड्रामा के नेक्स्ट एपिसोड के बारे में। जैसे ही मेहरुन्निसा को पता चलता है शाहनवाज शाह का भाई ही है जैन, और जैन को भी जेल से निकलवा लिया है, ये तो अब मेहरुन्निसा को इतना शदीद गुस्सा आ जाता है कि गुस्से से बाहर हो जाती है।
मेहरुनिसा शाहनवाज को ऐसी बातें सुनाती है कि वो मुंह देखता का देखता रह जाता है कि ये लड़की इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट है। मेहरुनिसा कहती है कि मुझे भी लगता था कि इतने गरूर तकब्बर वाला वो भी तुम्हारा भाई ही हो सकता है, क्योंकि और तो कोई हो नहीं सकता। जैसे ही शाहनवाज शाह अपनी वालदा के साथ जाता है पता करने के लिए वो अभी साहेब का, तो वहाँ पर मेहरुनिसा उनकी काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट और बेइज्जती करके वापस भेज देती है। ये बात जैसे ही अब पता चलती है समन शाह को, तो समन शाह कहती है कि तुम लोगों को अभी तक सियासत का कोई भी एक पॉइंट भी समझ नहीं आया, तो खाक आप लोग सियासत करोगे। जब तक मैं जिंदा हूँ आप लोगों को लेकर घूमती रहूंगी, जब मेरा सांस निकल गया तो फिर आप लोगों का तो कोई वाली वारिस भी नहीं है। जब मैं आप लोगों को समझा रही हूँ खास कर चोट लगती है तो उसके आगे हड्डी डाली जाती है। इस वजह से अब आप लोगों को भी ऐसा ही करना होगा। वो गरीब लोग हैं, उनके सामने जब तक हम पैसा नहीं फेंकेंगे तो वो कैसे जान छोड़ेंगे। लेकिन ये बात आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ जानी चाहिए थी, लेकिन आप लोगों की समझ में तो कोई बात भी नहीं आती। आप लोग खाली दिमाग लिए घूमते फिरते हो। मेरे सर पे ना चढ़ो, और जैन शाह की जान छुड़वानी है तो फिर यही करना होगा, क्योंकि उनके आगे जब तक पैसे नहीं जाएंगे वो अपना मुंह बंद नहीं रखेंगे। वो बहुत ज़्यादा चीख चीख कर हमें बहुत ज़्यादा बदनाम करते रहेंगे। और जैसे ही अब शाहनवाज शाह को इसकी समझ आ गई है तो शाहनवाज शाह चला जाता है फौरन हॉस्पिटल। नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि शाहनवाज शाह चला जाता है मेहरुनिसा के घर, उसकी वालदा को जाकर काफ़ी ज़्यादा रकम जो कि लाख रुपया तकरीबन उसके आगे फेंक देता है। उसको कहता है कि ये आपके बच्चे का हर्जाना है, जो कि हमसे बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो चुका था आपके बच्चे पर। ये तो उसकी वालदा चुपचाप पैसे पकड़ लेती है, क्योंकि गुर्बत के बायस इतनी ज़्यादा महंगाई के दौर में दो आने भी कमाने बड़े मुश्किल होते हैं। वहाँ पर मेहरुनिसा जैसे ही रूम से बाहर निकलती है वो देखती है कि इसने पैसे दिए हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ इसी की खातिर कि वो मुंह बंद रखें। वो जैसे ही पैसे उठाती है और शाहनवाज शाह के हाथ पर दे मारती है, उसको कहती है उठाओ पैसे और निकल जाओ हमारे घर से, हमें पैसों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है वहाँ पर जाकर डॉक्टर्स को दो पैसे, लेकिन इधर हमारे घर में आकर रिश्वत देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो आपके भाई का अदले का बदला ही लूँगी, क्योंकि जैसा तुम्हारे भाई ने किया है वैसा ही मैं करके रहूँगी। शाहनवाज शाह को भी गुस्सा आ जाता है। शाहनवाज शाह कहता है कि चलो मैं अभी देखता हूँ कि कब तक, कहाँ तक, किस हद तक तुम जा सकती हो। लेकिन मेहरुनिसा कहती है कि मैं उस हद तक जाऊंगी जब तक जिस हद तक तुम नहीं जा सकते। ये सुनते ही अब शाहनवाज शाह को मेहरुनिसा की बातें बड़ी याद आती हैं, बल्कि उसको मोहब्बत हो जाती है मेहरुनिसा से। दूसरी तरफ से अमल की बात की जाए, अमल काफ़ी ज़्यादा सिंसियर होती है शाहनवाज शाह के साथ। वो शाहनवाज शाह को कहती है कि किसी न किसी तरह से जल्दी से हम शादी कर लेते हैं। शाहनवाज कहता है कि इतनी शादी की जल्दी क्यों पड़ी हुई है, मैंने अभी शादी नहीं करनी, फ़िलहाल मैं कुछ करना चाहता हूँ। मैं अपने इतना काम में बिज़ी हूँ कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि तुम्हारे साथ हर टाइम बात करता हूँ कॉल पे। ये सुनते ही अब बहुत ही ज़्यादा अमल को गुस्सा आ जाता है। अमल कहती है चलो मेरे लिए टाइम नहीं है तो किसी और के लिए तो टाइम होगा। लेकिन जैसे ही अमल की वालदा उसको काफ़ी ज़्यादा समझाती है, वो कहती है कि बेटा वो बहुत ज़्यादा बड़े लोग हैं, वो सियासतदान हैं, हम उनके साथ रिश्ता नहीं जोड़ेंगे। अगर रिश्ता जुड़ भी गया तो मुझे नहीं लगता कि ये कामयाब हो पाएगा। लेकिन समन शाह जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा शातिर औरत है। उसने तो अपनी भाभी को पीछे लगाया हुआ है कि हम रिश्ता करेंगे, लेकिन अंदर से तो बहुत ही ज़्यादा जेलस होती है कि हम इसकी बेटी आते ही घर में किस तरह से उसके साथ पेश आने वाले हैं। दूसरी तरफ से अगर बात की जाए समन शाह के हस्बैंड की, जो कि शाहनवाज शाह का वालिद बहुत ही ज़्यादा बीमार है, इस टाइम वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है। उसकी काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है, लेकिन जो बंदा बीमार होता है उसको ही दूसरे की बीमारी का ही एहसास होता है। इस वजह से वो कहता है कि जिस बच्चे का बहुत बुरे तरीके से एक्सीडेंट हो चुका है उस बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत है, तीमारदारी की ज़रूरत है और पैसों की ज़रूरत है, बल्कि वो गरीब लोग हैं, किस तरह से खर्चा करते होंगे। दूसरी तरफ से जो जैन शाह है उसको तो घर में बहुत ही ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, वो बहुत ज़्यादा नशा कर रहा है, वो रूम में ही बंद बैठा हुआ है, उसको बहुत ज़्यादा परेशानी है, उसको बार बार मेहरुनिसा की बातें याद आ रही हैं, बल्कि उस लड़के की आंख में भी मेहरुनिसा ही बैठ गई है। दूसरी तरफ से वो तो अपनी बात किसी से शेयर भी नहीं करता।
शाहनवाज शाह क्या करने वाला है आप लोग देखेंगे कि इतना तेज और शातिर आदमी तो कभी नहीं दुनिया में देखा होगा। शाहनवाज शाह ने बहुत ही जल्द अपने भाई का टिकट करवाकर उसको आउट ऑफ कंट्री भेज दिया है, क्योंकि जैसे ही अब पब्लिक का दबाव पड़ेगा पुलिस पे तो बंदा नहीं मिलेगा, बंदे को तो यहाँ पर कोई उसका नाम निशान नहीं होगा। शाहनवाज शाह जो कि जैसे ही इलेक्शन के लिए खड़ा होगा तो कोई गरीब इसको वोट देने के लिए भी तैयार नहीं होगा, क्योंकि इसने लोगों का बहुत बुरा किया था। अब जैसे ही दाऊद आकर बताएगा कि मैम जी कोई भी आप लोगों के हक में नहीं खड़ा, क्योंकि सब के सब बहुत ही ज़्यादा खिलाफ हैं, ये सुनते ही अब समन शाह को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। समन शाह अब बहुत ही बुरे तरीके से नीचे गिरने वाली है, जो कि कभी भी 2-4 साल तक तो ऊपर उठ नहीं सकेगी, वो भी सियासत के दौरान। अब देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में समन शाह क्या करेगी। समन शाह तो अपना बहुत ही ज़्यादा जोर लगाकर लोगों से वोट मांगने के लिए क्या क्या वास्ते करने वाली है, लोगों की मिन्नतों समाजित करने वाली है। आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को भी लाइक करें और शेयर करें, आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों तक मिल जाए। अब इमल ने तो साफ साफ जवाब दे दिया है, तो मैं तो आपकी वाइफ नहीं बन सकती, क्योंकि मुझे आपकी वालदा ने कोई ऐसी बातें मेरी मम्मी जान को कही हैं कि मेरी वालदा कह रही हैं मैं कभी भी आपसे शादी नहीं करूंगी। बल्कि अमल कहती है कि किसी न किसी तरह से शाहनवाज तुम आओ और मेरी मम्मी से सॉरी करो और रिश्ता ले जाओ, लेकिन शाहनवाज शाह दिल से बहुत ही ज़्यादा नफरत करता है अमल से। अब नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि शाहनवाज शाह जो है वो बहुत बुरे तरीके से अपनी सियासत से नीचे गिरेगा और नया सियासतदान आ जाएगा। जो कि दूसरी तरफ से राफी की बात की जाए, राफी काफी ज्यादा मेहरुनिसा की वजह से परेशान है कि रात गए तक बाहर एक अकेली लड़की का रहना भी बहुत मुश्किल होता है। दूसरी तरफ से राफी की वालदा आती है, वो कहती है कि इतनी रात गए तक बच्ची अकेली बाहर है, लेकिन आप लोगों को जरा भी एहसास नहीं है कि इस दौर में आजकल के हालात इतने ज्यादा खराब है। मेहरुनिसा को टाइम से घर आने की परमिशन दिया कर, उसे कहा करो, जोरों जबरदस्ती उसके साथ गुस्से से पेश आया करो अगर वो टाइम से घर ना आए। लेकिन उसकी वालदा तो बेचारी बहुत ही ज़्यादा चुपसी ठान लेती है। वो कहती है कि मेरी बेटी ऐसी वैसी नहीं है, वो कहती है ऐसी वैसी की तो बात नहीं है, बट ज़माना इतना ज़्यादा ख़राब है कि आप अपनी बेटी को टाइम से ही घर बुलाया करें, क्योंकि किसी बहुत बड़े सियासतदान का मुकाबला करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर बच्चे का एक्सीडेंट हो चुका है, अगर वो पैसा वैसा दे रहे हैं तो फिर चुपचाप पैसे ले लो और इतना बड़ा इशू क्रिएट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेहरुनिसा जो है वो कहती है कि मैं मुकाबला करूँगी, लेकिन मुकाबला करते करते उसको कितने बुरे तरीके से कुचल दिया जाएगा। शाहनवाज शाह कहता है कि तुम तो एक तितली की मानद हो, मैं तो तुम्हें हाथ से ही मसल कर फेंक दूंगा। तुम्हारी फैमिली भी इतनी छोटी है कि दोबारा तुम्हारा नाम तक नहीं लेगी, ढूंढते ढूंढते सदियां गुजर जाएंगी। आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल मेरा सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हैं जाए और साथ मेरी वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। और वीडियोस तो बिल्कुल छोटी सी है, आप लोगों को सारी स्टोरी समझ आ जाएगी, स्किप तो बिल्कुल भी ना करें। बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया आप लोगों का, कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे इक़्तिदार ड्रामा के नेक्स्ट एपिसोड के बारे में। जैसे ही मेहरुनिसा को पता चलता है शाहनवाज शाह का भाई ही है जैन, और जैन को भी जेल से निकलवा लिया है, ये तो अब मेहरुनिसा को इतना शदीद गुस्सा आ जाता है कि गुस्से से बाहर हो जाती है। मेहरुनिसा शाहनवाज को ऐसी बातें सुनाती है कि वो मुंह देखता का देखता रह जाता है कि ये लड़की इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट है। मेहरुनिसा कहती है कि मुझे भी लगता था कि इतने गरूर तकब्बर वाला वो भी तुम्हारा भाई ही हो सकता है, क्योंकि और तो कोई हो नहीं सकता। जैसे ही शाहनवाज शाह अपनी वालदा के साथ जाता है पता करने के लिए वो भी साहेब का, तो वहाँ पर मेहरुनिसा उनकी काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट और बेइज्जती करके वापस भेज देती है। ये बात जैसे ही अब पता चलती है समन शाह को, तो समन शाह कहती है कि तुम लोगों को अभी तक सियासत का कोई भी एक पॉइंट भी समझ नहीं आया, तो खाक आप लोग सियासत करोगे। जब तक मैं जिंदा हूँ आप लोगों को लेकर घूमती रहूंगी, जब मेरा सांस निकल गया तो फिर आप लोगों का तो कोई वाली वारिस भी नहीं है। जब मैं आप लोगों को समझा रही हूँ खास कर चोट लगती है तो उसके आगे हड्डी डाली जाती है, इस वजह से अब आप लोगों को भी ऐसा ही करना होगा। वो गरीब लोग हैं, उनके
सामने जब तक हम पैसा नहीं फेंकेंगे तो वो कैसे जान छोड़ेंगे। लेकिन ये बात आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ जानी चाहिए थी, लेकिन आप लोग की समझ में तो कोई बात भी नहीं आती। आप लोग खाली दिमाग लिए घूमते फिरते हो। मेरे सर पे ना चढ़ो, और जैन शाह की जान छुड़वानी है तो फिर यही करना होगा, क्योंकि उनके आगे जब तक पैसे नहीं जाएंगे वो अपना मुंह बंद नहीं रखेंगे। वो बहुत ज़्यादा चीख चीख कर हमें बहुत ज़्यादा बदनाम करते रहेंगे। और जैसे ही अब शाहनवाज शाह को इसकी समझ आ गई है तो शाहनवाज शाह चला जाता है फौरन हॉस्पिटल। नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि शाहनवाज शाह चला जाता है मेहरुन्निसा के घर, उसकी वालदा को जाकर काफ़ी ज़्यादा रकम जो कि लाख रुपया तकरीबन उसके आगे फेंक देता है। उसको कहता है कि ये आपके बच्चे का हर्जाना है, जो कि हमसे बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो चुका था आपके बच्चे पर। ये तो उसकी वालदा चुपचाप पैसे पकड़ लेती है, क्योंकि गुर्बत के बायस इतनी ज़्यादा महंगाई के दौर में 2 आने भी कमाने बड़े मुश्किल होते हैं। वहाँ पर मेहरुन्निसा जैसे ही रूम से बाहर निकलती है वो देखती है कि इसने पैसे दिए हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ इसी की खातिर कि वो मुंह बंद रखें। वो जैसे ही पैसे उठाती है और शाहनवाज शाह के हाथ पर दे मारती है, उसको कहती है उठाओ पैसे और निकल जाओ हमारे घर से, हमें पैसों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है वहाँ पर जाकर डॉक्टर्स को दो पैसे, लेकिन इधर हमारे घर में आकर रिश्वत देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो आपके भाई का अदले का बदला ही लूँगी, क्योंकि जैसा तुम्हारे भाई ने किया है वैसा ही मैं करके रहूँगी। शाहनवाज शाह को भी गुस्सा आ जाता है। शाहनवाज शाह कहता है कि चलो मैं अभी देखता हूँ कि कब तक, कहाँ तक, किस हद तक तुम जा सकती हो। लेकिन मेहरुन्निसा कहती है कि मैं उस हद तक जाऊंगी जब तक, जिस हद तक तुम नहीं जा सकते। ये सुनते ही अब शाहनवाज शाह को मेहरुन्निसा की बातें बड़ी याद आती हैं, बल्कि उसको मोहब्बत हो जाती है मेहरुन्निसा से। दूसरी तरफ से अमल की बात की जाए, अमल काफ़ी ज़्यादा सिंसियर होती है शाहनवाज शाह के साथ। वो शाहनवाज शाह को कहती है कि किसी न किसी तरह से जल्दी से हम शादी कर लेते हैं। शाहनवाज कहता है कि इतनी शादी की जल्दी क्यों पड़ी हुई है, मैंने अभी शादी नहीं करनी, फ़िलहाल मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं अपने इतना काम में बिज़ी हूँ कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि तुम्हारे साथ हर टाइम बात करता हूँ कॉल पे। ये सुनते ही अब बहुत ही ज़्यादा अमल को गुस्सा आ जाता है। अमल कहती है चलो मेरे लिए टाइम नहीं है तो किसी और के लिए तो टाइम होगा। लेकिन जैसे ही अमल की वालदा उसको काफ़ी ज़्यादा समझाती है, वो कहती है कि बेटा वो बहुत ज़्यादा बड़े लोग हैं, वो सियासतदान हैं, हम उनके साथ रिश्ता नहीं जोड़ेंगे। अगर रिश्ता जुड़ भी गया तो मुझे नहीं लगता कि ये कामयाब हो पाएगा। लेकिन समन शाह जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा शातिर औरत है, उसने तो अपनी भाभी को पीछे लगाया हुआ है कि हम रिश्ता करेंगे, लेकिन अंदर से तो बहुत ही ज़्यादा जेलस होती है कि हम इसकी बेटी आते ही घर में किस तरह से उसके साथ पेश आने वाले हैं। दूसरी तरफ से अगर बात की जाए समन शाह के हस्बैंड की, जो कि शाहनवाज शाह का वालिद बहुत ही ज़्यादा बीमार है, इस टाइम वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है, उसकी काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है। लेकिन जो बंदा बीमार होता है उसको ही दूसरी की बीमारी का ही एहसास होता है। इस वजह से वो कहता है कि जिस बच्चे का बहुत बुरे तरीके से एक्सीडेंट हो चुका है उस बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत है, तीमारदारी की ज़रूरत है और पैसों की ज़रूरत है, बल्कि वो गरीब लोग हैं, किस तरह से खर्चा करते होंगे। दूसरी तरफ से जो जैन शाह है उसको तो घर में बहुत ही ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, वो बहुत ज़्यादा नशा कर रहा है, वो रूम में ही बंद बैठा हुआ है, उसको बहुत ज़्यादा परेशानी है, उसको बार बार मेहरुन्निसा की बातें याद आ रही हैं, बल्कि उस लड़के की आंख में भी मेहरुन्निसा ही बैठ गई है। दूसरी तरफ से वो तो अपनी बात किसी से शेयर भी नहीं करता। शाहनवाज शाह क्या करने वाला है आप लोग देखेंगे कि इतना तेज़ और शातिर आदमी तो कभी नहीं दुनिया में देखा होगा। शाहनवाज शाह ने बहुत ही जल्द अपने भाई का टिकट करवाकर उसको आउट ऑफ कंट्री भेज दिया है, क्योंकि जैसे ही अब पब्लिक का दबाव पड़ेगा पुलिस पे तो बंदा नहीं मिलेगा, बंदे को तो यहाँ पर कोई उसका नाम और निशान नहीं होगा। शाहनवाज शाह जो कि जैसी इलेक्शन के लिए खड़ा होगा तो कोई गरीब इसको वोट देने के लिए भी तैयार नहीं होगा, क्योंकि इसने लोगों का बहुत बुरा किया था। अब जैसे ही दाऊद आकर बताएगा कि मैम जी कोई भी आप लोगों के हक में नहीं खड़ा, क्योंकि सब के सब बहुत ही ज़्यादा खिलाफ हैं। ये सुनते ही अब समन शाह को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। समन शाह अब बहुत ही बुरे तरीके से नीचे गिरने वाली है, जो कि कभी भी 2-4 साल तक तो ऊपर उठ नहीं सकेगी, वो भी सियासत के दौरान। अब देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में समन शाह क्या करेगी। समन शाह तो अपना बहुत ही ज़्यादा जोर लगाकर लोगों से वोट मांगने के लिए क्या क्या वास्ते करने वाली है, लोगों की मिन्नतों समाजित करने वाली है। आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को भी लाइक करें और शेयर करें, आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों तक मिल जाए।
अब इमल ने तो साफ साफ जवाब दे दिया है, तो मैं तो आपकी वाइफ नहीं बन सकती, क्योंकि मुझे आपकी वालदा ने कोई ऐसी बातें मेरी मम्मी जान को कही हैं कि मेरी वालदा कह रही हैं मैं कभी भी आपसे शादी नहीं करूंगी। बल्कि इमल कहती है कि किसी न किसी तरह से शाहनवाज तुम आओ और मेरी मम्मी से सॉरी करो और रिश्ता ले जाओ। लेकिन शाहनवाज शाह दिल से बहुत ही ज़्यादा नफरत करता है अमल से। अब नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि शाहनवाज शाह जो है वो बहुत बुरे तरीके से अपनी सियासत से नीचे गिरेगा और नया सियासतदान आ जाएगा। जो कि दूसरी तरफ से राफी की बात की जाए, राफी काफ़ी ज़्यादा मेहरुनिसा की वजह से परेशान है कि रात गए तक बाहर एक अकेली लड़की का रहना भी बहुत मुश्किल होता है। दूसरी तरफ से राफी की वालदा आती है, वो कहती है कि इतनी रात गए तक बच्ची अकेली बाहर है, लेकिन आप लोगों को ज़रा भी एहसास नहीं है कि इस दौर में आजकल के हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं। मेहरुनिसा को टाइम से घर आने की परमिशन दिया कर, उसे कहा करो, ज़ोरों ज़बरदस्ती उसके साथ गुस्से से पेश आया करो अगर वो टाइम से घर ना आए। लेकिन उसकी वालदा तो बेचारी बहुत ही ज़्यादा चुप्सी ठान लेती है। वो कहती है कि मेरी बेटी ऐसी वैसी नहीं है। वो कहती है ऐसी वैसी की तो बात नहीं है, बट ज़माना इतना ज़्यादा ख़राब है कि आप अपनी बेटी को टाइम से ही घर बुलाया करें, क्योंकि किसी बहुत बड़े सियासतदान का मुकाबला करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर बच्चे का एक्सीडेंट हो चुका है, अगर वो पैसा वैसा दे रहे हैं तो फिर चुपचाप पैसे ले लो और इतना बड़ा इशू क्रिएट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेहरुनिसा जो है वो कहती है कि मैं अब मुकाबला करूँगी, लेकिन मुकाबला करते करते उसको कितने बुरे तरीके से कुचल दिया जाएगा। शाहनवाज शाह कहता है कि तुम तो एक तितली की मानद हो, मैं तो तुम्हें हाथ से ही मसल कर फेंक दूंगा। तुम्हारी फैमिली भी इतनी छोटी है कि दोबारा तुम्हारा नाम तक नहीं लेगी, ढूंढते ढूंढते सदियां गुजर जाएंगी। आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल मेरा सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करते जाएं और साथ मेरी वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। और वीडियोस तो बिल्कुल छोटी सी है, आप लोगों को सारी स्टोरी समझ आ जाएगी, स्किप तो बिल्कुल भी ना करें। बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया आप लोगों का, कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे इक़्तिदार ड्रामा के नेक्स्ट एपिसोड के बारे में। जैसे ही मेहरुनिसा को पता चलता है शाहनवाज शाह का भाई ही है ज़ैन, और ज़ैन को भी जेल से निकलवा लिया है, ये तो अब मेहरुनिसा को इतना शदीद गुस्सा आ जाता है कि गुस्से से बाहर हो जाती है। मेहरुनिसा शाहनवाज को ऐसी बातें सुनाती है कि वो मुंह देखता का देखता रह जाता है कि ये लड़की इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। मेहरुनिसा कहती है कि मुझे भी लगता था कि इतने गरूर और तकब्बर वाला वो भी तुम्हारा भाई ही हो सकता है, क्योंकि और तो कोई हो नहीं सकता। जैसे ही शाहनवाज शाह अपनी वालदा के साथ जाता है पता करने के लिए वो भी साहेब का, तो वहाँ पर मेहरुनिसा उनकी काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट और बेइज्जती करके वापस भेज देती है। ये बात जैसे ही अब पता चलती है समन शाह को, तो समन शाह कहती है कि तुम लोगों को अभी तक सियासत का कोई भी एक पॉइंट भी समझ नहीं आया, तो खाक आप लोग सियासत करोगे। जब तक मैं ज़िंदा हूँ आप लोगों को लेकर घूमती रहूँगी, जब मेरा सांस निकल गया तो फिर आप लोगों का तो कोई वाली वारिस भी नहीं है। जब मैं आप लोगों को समझा रही हूँ खास कर चोट लगती है तो उसके आगे हड्डी डाली जाती है। इस वजह से अब आप लोगों को भी ऐसा ही करना होगा। वो गरीब लोग हैं, उनके सामने जब तक हम पैसा नहीं फेंकेंगे तो वो कैसे जान छोड़ेंगे। लेकिन ये बात आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ जानी चाहिए थी, लेकिन आप लोगों की समझ में तो कोई बात भी नहीं आती। आप लोग खाली दिमाग लिए घूमते फिरते हो। मेरे सर पे ना चढ़ो, और ज़ैन शाह की जान छुड़वानी है तो फिर यही करना होगा, क्योंकि उनके आगे जब तक पैसे नहीं जाएंगे वो अपना मुंह बंद नहीं रखेंगे। वो बहुत ज़्यादा चीख चीख कर हमें बहुत ज़्यादा बदनाम करते रहेंगे। और जैसे ही अब शाहनवाज शाह को इसकी समझ आ गई है तो शाहनवाज शाह चला जाता है फौरन हॉस्पिटल। नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि शाहनवाज शाह चला जाता है मेहरुनिसा के घर, उसकी वालदा को जाकर काफ़ी ज़्यादा रकम जो कि लाख रुपया तकरीबन उसके आगे फेंक देता है। उसको कहता है कि ये आपके बच्चे का हर्जाना है, जो कि हमसे बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो चुका था आपके बच्चे पर। ये तो उसकी वालदा चुपचाप पैसे पकड़ लेती है, क्योंकि गुर्बत के बायस इतनी ज़्यादा महंगाई के दौर में दो आने भी कमाने बड़े मुश्किल होते हैं। वहाँ पर मेहरुनिसा जैसे ही रूम से बाहर निकलती है वो देखती है कि इसने पैसे दिए हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ इसी की खातिर कि वो मुंह बंद रखें। वो जैसे ही पैसे उठाती है और शाहनवाज शाह के हाथ पर दे मारती है, उसको कहती है उठाओ पैसे और निकल जाओ हमारे घर से, हमें पैसों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है वहाँ पर जाकर डॉक्टर्स को दो पैसे, लेकिन इधर हमारे घर में आकर रिश्वत देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो आपके भाई का अदले का बदला ही लूँगी, क्योंकि जैसा तुम्हारे भाई ने किया है वैसा ही मैं करके रहूँगी।
शाहनवाज शाह को भी गुस्सा आ जाता है। शाहनवाज शाह कहता है कि चलो मैं अभी देखता हूँ कि कब तक, कहाँ तक, किस हद तक तुम जा सकती हो। लेकिन मेहरुन्निसा कहती है कि मैं अब उस हद तक जाऊंगी जब तक, जिस हद तक तुम नहीं जा सकते। ये सुनते ही अब शाहनवाज शाह को मेहरुन्निसा की बातें बड़ी याद आती हैं, बल्कि उसको मोहब्बत हो जाती है मेहरुन्निसा से। दूसरी तरफ से अमल की बात की जाए, अमल काफ़ी ज़्यादा सिंसियर होती है शाहनवाज शाह के साथ। वो शाहनवाज शाह को कहती है कि किसी न किसी तरह से जल्दी से हम शादी कर लेते हैं। शाहनवाज कहता है कि इतनी शादी की जल्दी क्यों पड़ी हुई है, मैंने अभी शादी नहीं करनी, फ़िलहाल मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं अपने इतना काम में बिज़ी हूँ कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि तुम्हारे साथ हर टाइम बात करता हूँ कॉल पे। ये सुनते ही अब बहुत ही ज़्यादा अमल को गुस्सा आ जाता है। अमल कहती है चलो मेरे लिए टाइम नहीं है तो किसी और के लिए तो टाइम होगा। लेकिन जैसे ही अमल की वालदा उसको काफ़ी ज़्यादा समझाती है, वो कहती है कि बेटा वो बहुत ज़्यादा बड़े लोग हैं, वो सियासतदान हैं, हम उनके साथ रिश्ता नहीं जोड़ेंगे। अगर रिश्ता जुड़ भी गया तो मुझे नहीं लगता कि ये कामयाब हो पाएगा। लेकिन समन शाह जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा शातिर औरत है। उसने तो अपनी भाभी को पीछे लगाया हुआ है कि हम रिश्ता करेंगे, लेकिन अंदर से तो बहुत ही ज़्यादा जेलस होती है कि हम इसकी बेटी आते ही घर में किस तरह से उसके साथ पेश आने वाले हैं। दूसरी तरफ से अगर बात की जाए समन शाह के हस्बैंड की, जो कि शाहनवाज शाह का वालिद बहुत ही ज़्यादा बीमार है, इस टाइम वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है। उसकी काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है, लेकिन जो बंदा बीमार होता है उसको ही दूसरे की बीमारी का ही एहसास होता है। इस वजह से वो कहता है कि जिस बच्चे का बहुत बुरे तरीके से एक्सीडेंट हो चुका है उस बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत है, तीमारदारी की ज़रूरत है और पैसों की ज़रूरत है, बल्कि वो गरीब लोग हैं, किस तरह से खर्चा करते होंगे। दूसरी तरफ से जो जैन शाह है उसको तो घर में बहुत ही ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, वो बहुत ज़्यादा नशा कर रहा है, वो रूम में ही बंद बैठा हुआ है, उसको बहुत ज़्यादा परेशानी है, उसको बार बार मेहरुन्निसा की बातें याद आ रही हैं, बल्कि उस लड़के की आंख में भी मेहरुन्निसा ही बैठ गई है। दूसरी तरफ से वो तो अपनी बात किसी से शेयर भी नहीं करता। शाहनवाज शाह क्या करने वाला है आप लोग देखेंगे कि इतना तेज़ और शातिर आदमी तो कभी नहीं दुनिया में देखा होगा। शाहनवाज शाह ने बहुत ही जल्द अपने भाई का टिकट करवाकर उसको आउट ऑफ कंट्री भेज दिया है, क्योंकि जैसे ही अब पब्लिक का दबाव पड़ेगा पुलिस पे तो बंदा नहीं मिलेगा, बंदे को तो यहाँ पर कोई उसका नामो निशान नहीं होगा। शाहनवाज शाह जो कि जैसी इलेक्शन के लिए खड़ा होगा तो कोई गरीब इसको वोट देने के लिए भी तैयार नहीं होगा, क्योंकि इसने लोगों का बहुत बुरा किया था। अब जैसे ही दाऊद आकर बताएगा कि मैम जी कोई भी आप लोगों के हक में नहीं खड़ा, क्योंकि सब के सब बहुत ही ज़्यादा खिलाफ हैं। ये सुनते ही अब समन शाह को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। समन शाह अब बहुत ही बुरे तरीके से नीचे गिरने वाली है, जो कि कभी भी 2-4 साल तक तो ऊपर उठ नहीं सकेगी, वो भी सियासत के दौरान। अब देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में समन शाह क्या करेगी। समन शाह तो अपना बहुत ही ज़्यादा जोर लगा कर लोगों से वोट मांगने के लिए क्या क्या वास्ते करने वाली है, लोगों की मिन्नतों समाजित करने वाली है। आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को भी लाइक करें और शेयर करें, आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों तक मिल जाए। अब इमल ने तो साफ साफ जवाब दे दिया है, तो मैं तो आपकी वाइफ नहीं बन सकती, क्योंकि मुझे आपकी वालदा ने कोई ऐसी बातें मेरी मम्मी जान को कही हैं कि मेरी वालदा कह रही हैं मैं कभी भी आपसे शादी नहीं करूंगी। बल्कि अमल कहती है कि किसी न किसी तरह से शाहनवाज तुम आओ और मेरी मम्मी से सॉरी करो और रिश्ता ले जाओ। लेकिन शाहनवाज शाह दिल से बहुत ही ज़्यादा नफरत करता है अमल से। अब नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि शाहनवाज शाह जो है वो बहुत बुरे तरीके से अपनी सियासत से नीचे गिरेगा और नया सियासतदान आ जाएगा। जो कि दूसरी तरफ से राफी की बात की जाए, राफी काफ़ी ज़्यादा मेहरुन्निसा की वजह से परेशान है कि रात गए तक बाहर एक अकेली लड़की का रहना भी बहुत मुश्किल होता है। दूसरी तरफ से राफी की वालदा आती है, वो कहती है कि इतनी रात गए तक बच्ची अकेली बाहर है, लेकिन आप लोगों को ज़रा भी एहसास नहीं है कि इस दौर में आजकल के हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं। मेहरुन्निसा को टाइम से घर आने की परमिशन दिया कर, उसे कहा करो, ज़ोर ज़बरदस्ती उसके साथ गुस्से से पेश आया करो अगर वो टाइम से घर ना आए। लेकिन उसकी वालदा तो बेचारी बहुत ही ज़्यादा चुप्सी ठान लेती है। वो कहती है कि मेरी बेटी ऐसी वैसी नहीं है, वो कहती है ऐसी वैसी की तो बात नहीं है, बट ज़माना इतना ज़्यादा ख़राब है कि आप अपनी बेटी को टाइम से ही घर बुलाया करें, क्योंकि किसी बहुत बड़े सियासतदान का मुकाबला करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर बच्चे का एक्सीडेंट हो चुका है, अगर वो पैसा वैसा दे रहे हैं तो फिर चुपचाप पैसे ले लो, और इतना बड़ा इशू क्रिएट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेहरुन्निसा जो है वो कहती है कि मैं मुकाबला करूँगी, लेकिन मुकाबला करते करते उसको कितने बुरे तरीके से कुचल दिया जाएगा।
शाहनवाज शाह कहता है कि तुम तो एक तितली की मानद हो, मैं तो तुम्हें हाथ से ही मसल कर फेंक दूंगा। तुम्हारी फैमिली भी इतनी छोटी है कि दोबारा तुम्हारा नाम तक नहीं लेगी। ढूंढते ढूंढते सदियां गुजर जाएंगी। आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल मेरा सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हैं जाएँ और साथ मेरी वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। और वीडियोस तो बिल्कुल छोटी सी है, आप लोगों को सारी स्टोरी समझ आ जाएगी, स्किप तो बिल्कुल भी ना करें। बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया आप लोगों का, कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में करें।